Okay. Now, in this video, we have discussed about how to measure average specific gravity of soil and what do you mean by water content, how we conduct water content test in laboratory, how we measure density in field. These are some basic characteristics which to be used in your practical also. So I have covered here in brief, and I will share some video which is available in YouTube for your virtual expressions of laboratory experiments. So I have shared those videos in Google Classroom. So I requested all of you to go through that links and watch at every parts of this virtual experiments available on YouTube. And if you have any query further, then contact me. In this video I have just described basically what is the technicality in those experiments and how we measure those parameter in our laboratory. So first of all, we discuss about how to measure the average specific gravity of the soil. Suppose you have the soil, two types of soil, in which first soil particle size is larger than 2 mm, okay, and the weight is W1 and the volume is V1 clearly. And similarly you have another soil whose particle size is smaller than 2 mm, those weight is W2 and the volume is V2. So if in question you ask about how to measure the combined specific gravity of soil, so you don't do GS1 plus GS2 by 2. This is the not the correct way to find out the average specific gravity. So how you measure? Basically we know specific gravity is the ratio of unit weight of soil upon my unit weight of water. Okay, dry unit weight or soil solid unit weight gamma s upon my V. So suppose you have W1, suppose two soil, W1 plus W2, V1 plus V2. So water contain is water specific gravity, water specific gravity or water unit weight is common for those two. So we will also write those formula in this way: W1 plus W2 upon the V1 plus V2 is equal to specific average gravity. So here uh, I put W1 plus W2 in denominator of V1 plus V2. Okay, so and here we put W1 in multiplied W1 multiplied and divide W1 in above and top. Okay, W1 W1, this W1, this W1 I put here and elongated in two parts, one part this and this is two part. Okay, so in this result this is come in this form, and this is what, this is G1, this is G2, GS1, this is GS2. ओके, ये क्या बन गया आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, 1 अपॉन में W1 अपॉन में V1, W2 अपॉन में V2. दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, ऑफ सॉइल सैंपल 1, इक्विवेलेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. एंड व्हाट इज दिस? W1 अपॉन में W1 plus W2, W2 upon में W1 plus W2. This is the wet fraction. So we will also write this formula in this particular way. G average will be equal to 1 upon में P1 multiplied by 1 upon में GS1 plus P2 1 upon में GS2. Here P1 and P2 is the wet fraction and GS1 and GS2 is the combined separate specific gravity of soil. So I think it is clear to you.
Now move some basic range of specific gravity, which is I already discussed. Quartz, colonite, halloysite. This is the combined range. The combined range, the tentative range of the soil is about 2.65 to 2.9. Okay. So now important parameter which what I earlier discussed is how to measure the water content in laboratory. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा वाटर कंटेंट क्या होता है. वाटर कंटेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सॉइल या सॉइल सॉलिड्स. ओके. तो ये होता है रेशो. लेकिन इस रेशो को का यूज़ कैसे होता है या हम कैसे इसको प्रैक्टिकली करते हैं. तो ये और जो वाटर कंटेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सॉइल टेस्टिंग में, सॉइल में. इसके बिना सॉइल का कोई भी पैरामीटर हम मेज़र नहीं कर सकते. सबसे इम्पोर्टेंट बेस है सॉइल का. जैसे समझ लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस इज़ ए इम्पोर्टेंट पैरामीटर, वैसे ही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वाटर कंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर. तो ये आपको समझना होगा कि कैसे इसको करते हैं, कैसे इसके रिलेशंस को हम ड्राइव करते हैं. तो अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कंसिस्टेंसी लिमिट. अब आप आगे हम अगर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो होती है वो अलग अलग कंसिस्टेंसी सॉइल्स की होती है, लाइक लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट. तो ये सब लिमिट्स हम जो होते हैं हम वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस फार्मूला. ओके. वाटर कंटेंट इज आल्सो यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द फेस ऑफ रिलेशनशिप. ये 3 फेस सिस्टम जो होते हैं उनकी डिफरेंट फेसिंग को भी वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक्सप्रेस करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. इसकी कई मेथड होती है. ओवन ड्राई मेथड जिसमें से एक कॉमन मेथड है. पिक्नोमीटर होती है. फिर आपकी सैंडबार्ड मेथड होती है. क्विक कैल्शियम के थ्रू एक होती है क्विक मेथड जिसमें हम हाफ एन आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वाटर कंटेन है, जो कि जनरली फील्ड टेस्ट में यूज़ होता है. सपोज फील्ड में कोई सॉइल है, कॉम्पेक्शन हो रहा है, वहाँ पे आपको वाटर कंटेंट मेजर करना. तो एक इंजेक्टिंग ट्यूब आती है, उसको इंसर्ट करके उसमें कैल्शियम का चार्ज दे करके हम उसका वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो कई मेथड्स है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. मैं इसके वीडियोस आपको शेयर करूँगा तो आप इसे देख लीजिएगा. कहीं से इंटरनेट से इसको देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी लेंदी है और टाइम लिमिट हमारे पास कम है. तो मैं इसको फटाफट कंप्लीट करता हूँ. ओवन ड्राई मेथड क्या होती है. ओवन ड्राई मेथड जो कि बहुत कॉमन मेथड है. इसमें क्या होता है, आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब में कभी आप आए हो तो आपने एक ओवन देखा होगा. तो उस ओवन में हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को, जो भी आपका फील्ड से सॉइल सैंपल आ रहा है उस सैंपल को हम ले करके इस तरह के एक कंटेनर में जिसको मॉइस्चर कैन कहते हैं, इस मॉइस्चर कैन में हम पुट करके इसको ढक्कन लगा करके इसकी लीड लगा के इसका वेट करके रख देते हैं. इस तरह की वेइंग मशीन होती है, बैलेंस होता है, वहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं. टेम्परेचर की रेंज जनरली 105 से 110 डिग्री रखी जाती है. ये रेंज भी अलग अलग सॉइल्स के लिए होती है. कई बार गेट में पूछ लिया जाता है कि लाइक सॉइल ऑर्गेनिक है तो हम 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देते. यदि सॉइल में आपका जिप्सम ज़्यादा है तो 65 डिग्री से ज़्यादा नहीं देते. तो ये एक टेम्परेचर रेंजेस भी है जो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या क्या रेंजेस होती है. बट एक टेंटेटिव एज पर IS कोड आपकी जो सॉइल है उसकी रेंज होती है 105 से 110 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इस तरह के ओवन है, सैंपल लिया, फील्ड से सैंपल आया, उसको पुट करा और ओवन ड्राई करने के लिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह से पुट कर दिया. अब क्या आता है, 24 आवर्स के बाद में हम उस ओवन का उस पर्टिकुलर सैंपलर का फिर से वेट ले लेते हैं. उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं. तो सपोज़ ये मेरे पास एक रिपोर्ट है. सपोज़ आपका कोई मॉइस्चर कंटेनर है 1 जिसका नंबर है. नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट होती है सैम्पलर पे. तो मैंने मॉइस्चर कैन का नंबर दे दिया यहाँ पे 12. ठीक है. तो अब सबसे पहले तो मुझे उस मॉइस्चर कैन का लीड सहित उसका वेट करना होगा. तो कैन प्लस लीड का वेट है सपोज 7.78. ठीक है. फिर मैंने क्या करा, सेकंड नंबर पे उसमें सैंपल रखा, मॉइस्ट सैंपल जो कि मॉइस्ट जो फील्ड सैंपल है जिसमें मॉइस्चर है उसको कहते हैं मॉइस्ट सैंपल. तो वो मॉइस्ट सैंपल जो भी मैंने रखा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम रेंडमली मैंने पुट कर दिया और कंबाइंड वेट ले लिया जो आ रहा 16.39. अब थर्ड नंबर पे मैंने इसको 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई कर लिया और इसका वेट आया 15.28. ठीक है. कुछ मॉइस्चर उड़ गया. तो अब सॉइल सॉलिड का वेट कितना है ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. एम एस आप निकाल सकते हैं. इन दोनों लीड को माइनस करना.
M2 माइनस M3, या आप M3 माइनस M2 या M2 माइनस M3 करेंगे। मतलब आपका जो लीड सहित जो टोटल वेट था मॉइस्चर सैंपल का, उसमें से आप ड्राई सैंपल का मास हटा देंगे तो वो तो आपको वाटर का मास आएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला मास आएगा। अब ड्राई सॉइल सैंपल का मास यदि आपको निकालना है तो ये जो ड्राई सॉइल है इसमें से आप जो M1 है जो आपके कंटेनर का वेट है उसको माइनस कर देंगे तो ये ड्राई सॉइल का वेट आ जाएगा। ये 15.28 माइनस 7.78 कर देंगे तो आपको 7.5 मिल जाएगा। इसी तरीके से वाटर का वेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आपका मॉइस्ट सॉइल का और ड्राई सॉइल का वेट माइनस कर देंगे तो कितना पानी उड़ गया है मॉइस्चर ओवन होने से, वो वेट आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप वाटर कंटेंट निकालेंगे। तो ये तो एक मैंने प्रोसीजर बताया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मॉइस्चर कंटेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सॉइल या फिर WS। ठीक है, तो WS या WD वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे आप, जैसे कि मैंने बताया आपका मॉइस्ट सॉइल और ड्राई सॉइल को माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर आपका निकल जाएगा। ठीक है, और वेट ऑफ सॉइल का आप कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल आपको ये भी मैंने बता दिया आपको कि जो ड्राई सॉइल आई है, ड्राई सॉइल में से उसके लीड का कंटेनर का वेट आप माइनस कर दीजिए तो वेट ऑफ ड्राई ये भी पता लग जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो है 1.1 अपन में 7.5 ये आपका वाटर कंटेन है। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कई ये बेसिक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, बट इस पे कई बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और आपको लेबोरेटरी पर्पस से ये पता होना चाहिए कि वाटर कंटेन हम कैसे मेज़र करते हैं फील्ड में। ओके, तो वही चीज़ है। देखिए यहाँ मैंने आपको टेम्परेचर रेंज बताई है कि क्यों हम इस रेंज में जाते हैं, क्योंकि क्या होता है यदि 110 डिग्री से 1110 से हम ज़्यादा जाते हैं तो क्या करता है कि ये जो सॉइल की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, स्पेशली क्ले की, यदि आपकी, जैसे मैंने बताया था 2 टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन मतलब जिसमें आपका जो सॉइल है अलग अलग सीव्स होती है, तो एक 75 माइक्रोन की सीव होती है, एक छलनी होती है। यदि उस पर आप सॉइल को वेट कर रहे हैं, उस पास कर रहे, सीव कर रहे, उसको छान रहे, तो जो छनी हुई सॉइल जो आपको मिल रही है, जो पासिंग सॉइल आपको मिल रही है, वो टोटल सॉइल के 50% से यदि ज़्यादा है। सपोज़ मैंने 1 किलो सॉइल ली है, उसको 75 माइक्रोन की सीव पे 75 माइक्रोन की सीव से मैंने छाना है, तो छानने के बाद जो भी सॉइल मुझे मिली है वो 500 ग्राम से ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो ये फाइन ग्रेन कहलाती है। और इसके ऊपर की जो भी है वो कोर्स ग्रेन कहलाती है। यदि उल्टा हो जाए, यदि मैं 1 किलो सॉइल लूँ और उस पर उस पर्टिकुलर सीव से रिटेन होने वाली सॉइल का वेट 500 ग्राम से ज़्यादा हो, या पास होने वाली सॉइल का वेट 500 ग्राम से कम हो, तो वो सॉइल कहलाती है आपकी कोर्स ग्रेन। तो फाइन सॉइल के कैटेगरी में आता है आपका सिल्ट और क्ले। और क्ले की जो स्पेसिफिक साइज़ होती है वो होती है 2 माइक्रोन। तो 2 माइक्रोन से कम की जितनी भी सॉइल है वो कहलाती क्ले, और 2 से 75 के बीच की सॉइल कहलाती सिल्ट। अब सिल्ट को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, कोर्स और फाइन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से यदि हम 75 के अबव की बात करें तो उसमें आती है सेंड। सेंड की रेंज होती है 75 से 4.75 mm, 75 माइक्रोन से 4.75 mm, और 1 mm इक्वल टू 100 माइक्रोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कन्वर्सन 1 mm में 100 माइक्रोन होते हैं। तो ये हो गई सेंड। 4.75 से 4.75 से 20 mm तक की जो होते हैं वो होते हैं ग्रेवल्स, और फिर 20 टू 80 और 80 टू 100 बोल्डर और कोबल में इसको बांटा गया हुआ है। तो ये सब सॉइल की कैटेगरी होती है अलग अलग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आपकी फाइन सॉइल है जो कि क्लेली सॉइल है, तो 1110 के ऊपर जाने पे आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो जाती है, तो इसलिए हम 1110 उसकी लास्ट लिमिट रखते हैं। और लोअर टेम्परेचर की रेंज होती है 60 डिग्री, ये होती है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, और या फिर आपकी जिप्सम सॉइल के लिए 65 डिग्री होती है। ठीक है, ये कुछ और मेथड्स है, पिक्नोमीटर, सैंड बार, ट्रैपिड मॉइस्चर मीटर जो कि कैल्शियम वाली होती है, और टोरजन बैलेंस मॉइस्चर मीटर, इसका यूज़ हम करते हैं। इसको आप देखिएगा, पिक्नोमीटर क्या होता है, पिक्नोमीटर और डेंसिटी बॉटल, ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज़ हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों के लिए करते हैं। तो आगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे लैब में, ये देखेंगे।
और इनके मैं वीडियो रिलेवेंट वीडियोस प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप इन्हें देखिएगा। ओके।